اسرائیلی وزیر دفاع نے تہران کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹیلی گرام پر لکھا، رات کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں کا جواب تہران کے شہریوں سے لیا جائے گا اور وہ جلد اس کی قیمت چکائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کورٹس نے لکھا کہ تہران کا گھمنڈ کرنے والا ڈکٹیٹر ایک بزدل قاتل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اسرائیل کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا، جو ایران کی کمزور ہوتی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تہران کے باشندے جلد اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے جو اہداف طے کیے ہیں اس کے لیے ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں۔ اور خبر آپ کو دیں گے، پنجاب کابینہ نے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی ہے۔ الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ الفت، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں پنجاب کابینہ کا ہونے والا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اس اجلاس میں بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی گئی ہے باقاعدہ طور پر، اور اب کچھ دیر کے بعد صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ الرحمان پنجاب اسمبلی میں بجٹ 2025-26 پیش کریں گے۔ اس بجٹ کا جو مجموعی تخمینہ ہے وہ 5300 ارب روپے رکھا گیا ہے، جس میں 1240 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص کیے گئے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں آج گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر کا کہنا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے۔ کل مضافات میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج کراچی کا آغاز ایک گرم اور مرطوب دن کے ساتھ ہوا۔ کی توقع ہے کہ آج شام گئے کراچی کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی سے معتدل بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران جو ہے وہ گرد آلود ہوائیں بھی چل سکتی ہیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود رہے گا۔ یہ سلسلہ آج کے لیے ہے، کل ہو سکتا ہے جس کی زیادہ شیورٹی نہیں ہے کہ کراچی کے آؤٹ اسکرٹس میں کہیں بارش ہو جائے۔ آج کراچی کے ساتھ ساتھ جامشورو، ٹھٹھا، سجاول، بدین، تھر پارکر، عمر کوٹ کے اضلاع میں بھی اچھی بارش کے امکانات ہیں۔ لاڑکانہ کے ایس ایس پی چوک پر نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ، ایس ایچ او نذیر چانڈیو جاں بحق ہو گئے۔ بابو اقبال اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی بابو، دیکھیں، یہ ایس ایچ او تھے بیک آباد کا ایک تھانہ ہے میرپور گورو، وہاں یہ پوسٹ ہے اور وہاں اپنی پوسٹنگ کے دوران جو ہے کیس کی پراپرٹی تھی جو یہ لے کر آئے، اور لانے کے بعد یہاں فارنسک لیبارٹری بھی ہے اس میں، اور کچھ کورٹ میں جمع کرانی تھی، جس کی وجہ سے یہ یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کو جو ہے نا گھاٹ لگا کے ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ابھی ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ یہ پرانی دشمنی بھی ان کی ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور ایک ٹیم بنا دی گئی ہے تاکہ فوری طور پہ جو ہے وہاں سے تفصیلات جمع کر کے اور ایویڈنس لے کے جو ہے نا مزید اس پہ کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ بابو اقبال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسٹیٹ بینک مالی سال 2024-25 کی آخری مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں معاشی اشاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک شرح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس کمی کر سکتا ہے۔ IMF دباؤ کی سبب شرح سود برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 11% ہے۔ کاروباری طبقہ مطالبہ کر رہا ہے شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں اعلان کیا تھا اس سال شرح سود سنگل ڈیجٹ پر آ جائے گا۔ جون 2024 سے اب تک شرح سود میں 11% کمی ہو چکی ہے۔ میں یہ لکھنا بھول گئی کہ نان فائلر کو رشتہ اور سموسے کے ساتھ چٹنی نہیں ملے گی، ایک پیر سے چلنا ہوگا تاکہ دور سے پتہ چل جائے نان فائلر آ رہا ہے۔ عبدالقادر پٹیل کی فائنانس بل پر کڑی تنقید، کہا حکومت کو خوش فہمی ہے کہ پیپلز پارٹی ہر چیز کی حمایت کرے گی تو اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ حکومتی بینچوں میں یہ خوش فہمی ہے، پیپلز پارٹی ہر چیز کو سپورٹ کر جائے گی، یقین سے کہتا ہوں سر اس بار ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سیکشن 114C اس میں کچھ چیزیں لکھنا آپ بھول گئے ہیں۔ یہ رشتہ مانگیں گے تو ان کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، یہ سموسے خریدیں گے تو ساتھ میں چٹنی نہیں ملے گی۔ یہ دو پیروں کا استعمال نہیں کر سکتے، ایک پیر سے لنگڑا کے چلیں گے تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ نان فائلر جا رہا ہے۔ یہ 138 اور 140 ٹیکس کی وصولی کم اور بتہ گیری زیادہ ہے سر۔ جس طرح ہمارے ساتھ کراچی میں ہوتا تھا، نوٹس دیے بغیر ہی اکاؤنٹس منجمد اور رقم نکال لے گی ایف بی آر کو کیا آپ کوئی جلاد بنانے جا رہے ہیں؟ کسی بھی کاروباری مقام پر ایک شخص کو
FBR जाके खड़ा कर देगा कि देखो ये कारोबार से किस तरह नफा नुकसान हो रहा है। यानी आपके ऑफिस में भी वो आपके सर पे खड़ा हुआ होगा। अच्छा हुआ ये नहीं लिख दिया इन्होंने कि बेडरूम में वो देखे कि राइट साइड पे इसको सोना है या लेफ्ट साइड पे सोना है, वो भी ये फैसला करे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बानी PTI बाहर आए तो इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। यही वजह है कि ये उनसे बात करने को तैयार नहीं। मुल्क को इस वक्त मफाहमत की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं तहरीक इंसाफ के इब्तदाई 3 साल में 54 लाख रोज़गार के मौके पैदा किए। यकीन नहीं आता तो PTM दौर की रिपोर्ट देख लें। 6% से मईशत की तरक्की हो रही थी, पिछले 3 साल में ये औसतन 1.6% हो गई है। कर दूं 1 करोड़ नौकरियां 5 साल हुकूमत होती है, इसका मतलब सालाना 20 लाख नौकरियां जो हैं उसका वादा किया गया था। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक उसकी रिपोर्ट जो आखिरी निकली है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं निकाली, वो PDM की हुकूमत ने निकाली है, वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने निकाली है। उसके मुताबिक पहले 3 साल जो थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, उसके अंदर 54 लाख रोजगार का इजाफा हुआ, यानी सालाना 18 लाख। 3.5 साल का जो पहले 1.5 साल का अरसा था वो कोरोना का अरसा था जिसमें दुनिया की मईशतें बह गई। उसके बाद 6% से मईशत की तरक्की हो रही थी सालाना, जो इस पिछले 3 साल में औसतन सिर्फ 1.6% हुई है। भाईजान अगर आप ऐसे ही हुकूमतें बदलते रहेंगे, म्यूजिकल चेयर चलती रहेंगी तो फिर अवाम नहीं मिलना कुछ। अपोजिशन लीडर अहमद खान की बात पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि PTI वाले अपने दौर में कह चुके हैं पेट्रोल 400 पर जाना चाहिए। जब हुकूमत उनके हाथ में थी कोई भलाई का काम नहीं हुआ। एक दिन में 2 अजलास के सवाल पर कहा अपोजिशन में इतना पढ़ा लिखा कौन है जो स्पीकर से ज़्यादा रूल्स जानता हो। अपने दौरे हुकूमत में कह चुके हैं कि पेट्रोल को 400 रुपये पे जाना चाहिए, तो शर्म तुमको मगर क्यों करनी आती है। मुहावरा आपने सुना होगा लेकिन लगता है अपोजिशन ने बिल्कुल नहीं सुना। तो इनका काम है वो गला फाड़ना, किताबें फाड़ना, माइक तोड़ना, वो ये करेंगे। इनके हाथ से जब ये हुकूमत में थे तब भी कोई भलाई का काम नहीं हुआ और अब भी नहीं हुआ। 2 इजलास आए हैं, टेक्निकली तौर पे ये अपोजिशन कह रही है कि ये सही नहीं है। अपोजिशन में से इतना पढ़ा लिखा कौन है जो रूल्स प्रोसीजर स्पीकर पंजाब असेंबली से ज्यादा आते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बचर कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन बिल लाया जा रहा है, अब कोई हुकूमत की तशरीरी मुहिम पर सवाल नहीं उठा सकता। पंजाब हुकूमत जितने गैर कानूनी काम कर रही है उसके गले पड़ेंगे। रात पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। मरीम नवाज का बजट भी ऐसा ही होगा। में पहली दफ़ा है कि आप बजट सेशन के दिन और इजलास भी कर रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन बिल भी आ रहा है जिसमें आप पे पाबंदी लगाई जा रही है आम आदमी से कि किसी को पूछे कि इन्होंने ये तशहीरी मुहिम क्यों की। अब तो इसने असेंबली की रवायात को भी पामाल करना शुरू कर दिया है। जितने भी गैर कानूनी काम ये कर रही है ये इसके गले पड़ेंगे। जो रात को चचा ने डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया है तो भतीजी का भी वही इसी तरह ही बजट होगा ना। अभी बजट में बहस हो रही है और उन्होंने रात को ही डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया है। इनको सेल्फ प्रोजेक्शन का इतना शौक है। 1102 अरब रुपया उसमें इन्होंने ADP रखी है और ADP टोटल चीफ मिनिस्टर है। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत और निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बरतानवी तिब्बी अमले के अहलकार आपदीदा हो गया। मिस्र में फ़ौजी अहलकारों से रो रो कर इल्तिजा की कि खुदारा अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का साथ दें। I believe that the people of the Arabic nations have a white heart. I believe you are good people. They are starving children. I tried to feed these children and they shot at me. For love, for humanity, for Islam, welcomed me into their heart. I paid to go there as a nurse. They beat me in the desert for feeding starving Islamic children. Where is your calm? Where is your heart? For the love of life and for the love of humanity. They're babies and women. The women are trying to feed their dying babies. Do you know what that smells like? Do you know what that sounds like? For humanity and for love, stand with your brothers and sisters in Palestine. I have never seen or experienced anything like it. Please, beg you. Allow us to march to Palestine. इसराइल ने गजा में मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद और 315 को ज़ख्मी कर दिया। शोहदा में फ़लस्तीनियों के लिए राशन मुहिम में शामिल 17 अफराद भी शामिल हैं। इसराइली बमबारी के खिलाफ यूनान और चिली में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कनाडा में G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना हो गए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है मैंने सदर ट्रंप को ईरानी हम मंसब का पैगाम पहुंचा दिया है। ईरान और इसराइल तनाज़ा चंद घंटों में
थम जाएगा, बातचीत का रास्ता खुलेगा। G7 रहनुमाओं के साथ इस मामले पर बात करने का मौका मिलेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर कनाडा पहुंच गए हैं। जर्मन चांसलर कहते हैं पहला उसूल ये होगा कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए ख़तरा है और इसराइल को ख़तरात से बचाव का हक हासिल है। तनाज़ा बढ़ने से रोकना ज़रूरी है। सिफारतकारी की गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए। ईरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में फंसे पाकिस्तानी तलबा वतन वापस रवाना हो गए। 80 तलबा हरमज़गान मेडिकल यूनिवर्सिटी और 97 तलबा ज़ंजान मेडिकल यूनिवर्सिटी से वतन वापस रवाना हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक तेहरान की मुख्तलिफ जामियात के कई तलबा बॉर्डर की जानिब रवाना हुए हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने से 3 बसें रवाना की गई हैं। ज़ंजान से भी तलबा की 3 बसें पाकिस्तान रवाना हुई हैं। हरमज़गान यूनिवर्सिटी के 9 तलबा अपनी मदद आप के तहत वतन वापस रवाना हुए हैं। ईरान को किसी सूरत में एटमी हथियार हासिल नहीं करने देना चाहिए। यूरोपीय कमीशन के सदर का इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिता। कहा सफारती रास्ता सबसे बेहतर हल है, लेकिन ईरान की जानिब से ताउन ना करने पर इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। G7 समिट में इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और यूक्रेन रूस तनाज़े को ज़ेर बहस लाया जाएगा। ईरानी मुत्तहिद हो जाएं, हमें नस्लकुशी के मुजरिम की जारहियत का ताकत से मुकाबला करना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौम से अपील कर दी। पार्लियामेंट से खिताब में कहा आज हर तरह के इख्तिलाफात और तनाज़े को ख़त्म कर दें। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा ईरान हमलावर नहीं है और ना ही जंग चाहता है। जौहरी हथियारों के हुसूल का भी कोई इरादा नहीं, लेकिन ईरान यूरेनियम की अफजोदगी जारी रखेगा क्योंकि जौहरी तवानाई से मुस्तफ़ीद होना ईरान का हक है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान में मोसाद के लिए जासूसी करने वाले को फांसी दे दी गई। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने मोसाद के जासूस इस्माइल फ़िक्री को मुकम्मल फौजदारी मुकदमे के बाद आर्टिकल 6 के तहत सज़ाए मौत का हुक्म दिया। इस्माइल मोसाद के 2 एजेंटों से राब्ते में था और उन्हें इंतहाई हसास और कौमी सलामती से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। सिक्योरिटी हुकाम ने इस्माइल के इलेक्ट्रॉनिक आलात का फॉरेंसिक तज्जिया किया, जिसमें मोसाद के हैंडलर से तफसीली मवासलात और हिदायत का पर्दाफाश किया। दौरान इनकलाब ने इसराइल पर मज़ीद तबाहकुन हमलों का ऐलान कर दिया। अपने ताज़ा बयान में कहा हमारे हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हमारे खिलाफ से होनी जारहियत जारी रहेगी। इसराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। आइंदा कार्रवाइयाँ पिछली कार्रवाइयों से कहीं ज़्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसलाकुन होंगी। IRGC एरोस्पेस फोर्सेस ने एक नया मिसाइल हमला किया जिसमें सेहूनी दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और दीगर हसास मकामात को निशाना बनाया गया। छठा हमला पहले से ज़्यादा मजबूत और तबाहकुन था और हमने जदीद तरीक़े, ज़हानत और जदीद आलात का इस्तेमाल किया। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग अपने चौथे रोज़ में दाखिल हो गई है। इसी दौरान ईरान के फर्दो न्यूक्लियर प्लांट के करीब ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिनके बाइस ज़मीन में झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 2.5 रिकॉर्ड की गई है। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की जानिब से जारी करदा वीडियोज़ में दिखाया गया कि ये धमाका कुम शहर से 20 किलोमीटर दूर पेश आए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पुलिस ने कार्रवाई करके मोसाद की ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री का पता लगा लिया। मजीद 2 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में मोसाद के एजेंटों के कब्जे से 200 किलो बारूद और 23 ड्रोन्स का सामान और दीगर आलात बरामद कर लिए। पुलिस तर्जुमान सईद मुंतज़िर अल महदी ने बताया इन 2 अफराद को तेहरान के शहर रे के ज़िला फ़िशाफ़ोया से गिरफ्तार किया गया। तस्नीम न्यूज़ का कहना है 3 मंजिला इमारत इसराइली एजेंटों की जानिब से ड्रोन्स की तैयारी और उन्हें दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। एतवार को भी सूबा अलबर से मोसाद के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया था।